दुबई के रिंग ऑफ फायर से बढ़िया कोई मुकाम नहीं आज के सुपरहिट मुकाबले के लिए। डीपी वर्ल्ड ILT20 के दो दिग्गज कोशिश करेंगे अपनी टीमों को जीत दिलवाने की। ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार डेविड वॉर्नर दुबई कैपिटल्स के हैं मुखिया, मगर उनका बल्ला अभी खामोश है और दो लगातार हार के बाद उनकी टीम को सख्त जरूरत है अपने कप्तान से एक आतिशी पारी की। आज रात होगी बड़ी चुनौती पाकिस्तान तेज गेंदबाज के जादूगर शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन है सितारों से भरी डेजर्ट वाइपर्स की टीम के सबसे बड़े नाम और उनकी टीम प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए जान लगा देगी। गेंदबाजी के उस्ताद तो हैं ही अफरीदी, पर 2 रात पहले उन्होंने बल्ले से गेम जिताया था एक पैसा वसूल मुकाबले में। और वाइपर्स ने यह अंतिम मुकाबला जीत लिया। शाहीन अफरीदी अपनी टीम को यह मुकाबला जिताते हुए। अरे दीज आर द मोमेंट्स भाई, ये वो पल हैं जिसलिए हम टॉप लेवल स्पोर्ट को देखते हैं। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 3 रन और 3 रन बनाए किसने? कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने। दूसरी जीत दिलाई डेजर्ट वाइपर्स को। लेकिन भाई रात गई बात गई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जीवित रहना है तो एक और मुकाबला अपने नाम करना पड़ेगा। फिलहाल इट्स टाइम फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट टॉस। The battle for 2 points starts with the toss. The captains are here with me. David Warner of the Capitals, Colin Munro of the Vipers. We've got the match referee, Simon Toffel, and we've got Sam Sayedin, who is the toss representative as well. Warner with the coin. Heads. Heads is the call. And the call is made. It's a tail, so the Vipers have won the toss. So, Colin Munro. You picked heads. Ah, sorry. We're going to bowl. Just getting it right. So, good spot there, David Warner. He was looking at that too. So let's tell everyone, what are you going to do and tell me why? We're going to have a bowl. Yeah, look, surface looks a little bit dry, and we always talk about that dew factor at the end, but it's irrelevant if you don't bowl well in the first 6 overs. What have you done differently to give us a David Warner special today with the bat? A little bit of luck would go well. Yeah, just clear mind. Being brave and coming out here and just trying to execute what I do. There've been a few difficult surfaces that we've played on, but look, there's no excuses. We train and we have to get up and about, and yeah, that's what I love doing. Just 2 wins this season for you so far. Would you say that most of your issues that you've encountered had to do with your batting and bowling in the power play phase? 100%. That's something we spoke about in our team meeting. It's the first 6 from both. If we don't start well, it's hard to catch up. So we've got to try and do that tonight. We played at Sharjah, didn't go to plan, but here at home, hopefully we can execute it better than last time. It's been a great spectacle looking at your team catch this season. Just 1 drop from 18 opportunities. What's made the difference? I think the boys put in a lot of hard work, and a couple of the guys like the looks of this bike over there. So they're excited about that and the chance of doing that. But there's some good contenders. But yeah, practice catches win matches. So all the very best to you. Thanks. Go well. Let's get Colin Munro in here. Colin, were you surprised with that decision to bowl first? Absolutely not. I think everybody wants to do that these days. So, like Davey said, whatever we have to do now, obviously it's batting. We've got to do it well up front and hopefully we put on a score. We played on this wicket last game. We only narrowly chased it down, although top order didn't do the work. We know what we have to come out and execute today. You reflected on that last game. It was an absolute thriller. You won by 2 wickets. What difference has that win made to your team? I just think a little bit of maybe some confidence, I think. Even though it wasn't a pretty performance by us, by no means. Guys that have, I think if we're brutally honest with ourselves, our batting hasn't quite clicked. And we're still putting ourselves in contention to win games of cricket. So from our point of view, that's exciting. We've got some match winners with the bat that we haven't really seen at the top of the order yet. So if we can click tonight, then, put your hats on and watch it fly. Well, you'll have to go against the trend. 6 from 6, won by teams chasing here. All the very best to you, Colin Munro. Thank you. News from the middle, the toss. Capitals have won the toss, and not surprisingly, they will bowl first. जी, दुबई कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने वहां पे बोला कि भाई थोड़ा लक चाहिए यहाँ पे, तो लक उनके फेवर में आया है। टॉस जीते हैं और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लेकिन हमारे शो पर बहुत कुछ है। वॉर्नर या नो वॉर्नर, बड़े पकवान आपके लिए लाए। क्या आज डेविड वॉर्नर और दुबई कैपिटल्स की बदलेगी किस्मत?
आखिरी बॉल में रोमांचक विजय के बाद क्या बरकरार रहेगा डेजर्ट वाइपर्स का यह जीत का सिलसिला? वही लास्ट बॉल थ्रिलर के हीरो शाहीन शाह अफरीदी बताएंगे अपने क्रिकेट के सुनहरे सफर के बारे में। आखिरी गेंद 3 रन बनाए, जो स्टेडियम में था ना भाई, पैसा वसूल। लेकिन मेरे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, अंजुम चोपड़ा और हरभजन सिंह। गलत दिन चुना सर स्टेडियम पे नहीं आने के लिए। क्या माहौल था भज्जी वहां पे। आखिरी सेकंड लास्ट गेंद पर ऐसा लग रहा है 2 भागे 1 भागा, लगा हारेंगे, फिर 3 भाग गए जी। बहुत बढ़िया। देखिए वो गेम अब तक की इस साल की मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया गेम हुई है। लास्ट बॉल तक मैच लड़ा, वही देखने के लिए तो सारा क्राउड आता है, हम लोग आते हैं, मज़ा आया वो गेम देख के। और शाहीन ने जिस तरीके के अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और लास्ट में लकी थे कि बॉल एज लगा और उस तरफ गया बॉल, ऐसा नहीं कि वहाँ पे मारना चाह रहे थे। और लेकिन देखिए लक भी तो बहादुरों का साथ देता है, ये बहादुर थे, डटे रहे। लास्ट ओवर में 10 रन बनाए बिना कोई चौका मारे, भाग भाग के 2-2 रन बनाए। और सेकंड लास्ट पे जैसे आपने बोला कि सिंगल मिस किया, खुद स्ट्राइक रखी, जिम्मेदारी ली। और बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। इन्होंने जिम्मेदारी ली अपनी टीम को कि नैया पार लगाई और एक लेसन सेट किया बाकी के खिलाड़ियों के लिए भी। इफ ही कैन देन व्हाई कांट यू गाइस। टॉप ऑफ द ऑर्डर के लिए ये एक लेसन था। तो आई होप दे विल कम बेटर टुडे एंड परफॉर्म बेटर। आप थोड़े सरप्राइज थे, कलाइयों का इस्तेमाल हो रहा था, मलाई वाले शॉट मारे जा रहे थे भाई साहब। मैं 2 चीजों पे सरप्राइज थी कि एक कि ट्रेंट बोल्ट ने वो लास्ट बॉल डाली कहाँ थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, क्योंकि उसके पहले तो स्टंप पे डाल रहे थे। दूसरी चीज, जब वो लास्ट बॉल हुई थी ना और जब वो पॉइंट के पीछे बॉल गई थी, थर्ड के रीजन में बॉल गई थी, तो वहीं पे खड़े होकर ऐसे देख रहे थे बॉल को। वहीं खड़े थे, 1 रन हुआ, 2रा रन हुआ, 3रा रन हुआ, फिर उन्होंने रियलाइज किया मैं स्टंप्स पे चला जाता हूँ। फिर भाग के पीछे स्टंप्स की तरफ गए, तब तक जब तक कीपर ने बॉल फेंकी वो स्टंप्स तक पहुंचे भी नहीं थे। वो इतने सरप्राइज थे। सो जहाँ एक क्रेडिट है कि डेजर्ट वाइपर्स ने जीत हासिल करी एक बार फिर से स्टेडियम में, और बहुत जरूरी जीत हासिल करी, बट एट द सेम टाइम जो हम बेसिक्स की बात करते हैं ना, वो वहां पर दिखे नहीं। बिल्कुल 4 अंक आ गए जी वाइपर्स के खेमे में उस जीत के साथ। अब 2 जीत लग गई है भाई वाइपर्स के नाम। लेकिन अंजुम, अगर आप इस पॉइंट्स टेबल को देखिए, ऑल 6 टीम्स इन विद अ चांस फॉर अ प्लेऑफ्स। आपने इतना फ्रेंचाइज क्रिकेट कवर किया है, ये कहाँ दिखता है कि ये हाफवे स्टेज हो चुका है? वे पास द हाफवे स्टेज, ऑल 6 इन विद अ शाउट अभी भी, और रहेगा भी इसी तरीके से, चलता भी रहेगा, हिलेगा नहीं। क्योंकि चाहे वो माय एमिरेट्स अभी सबसे ऊपर पायदान पे हैं जरूर, और डेजर्ट वाइपर सभी को जीत की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेजर्ट वाइपर को जीत की जरूरत है, दुबई कैपिटल्स को भी चाहिए, शारजाह वॉरियर्स को भी चाहिए, क्योंकि एक मैच भी हार जाएंगे तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जीत ही रहा है। सो इस वजह से मुझे लगता है कि जो डीपी वर्ल्ड ILT20 ना सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि जब जीतना शुरू करती है तो सारी टीमें इकट्ठे जीतती हैं, जब हारती है तो कहते हैं हमसे बुरा कोई नहीं है। तो वो हार वाला जो सिलसिला होता है ना, वो टूर्नामेंट के शुरू में होता है, जब कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे होते हैं, कितना रन बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। लेकिन अब सबको समझ में आ गई कि अब हार नहीं सकते, तो अब जो कम्पिटिटिव मैचेस और ज्यादा रहेंगे जी। कुल मिला के 10 मुकाबले खेलती है हर टीम इस लीग फेज में, और उसके बाद आपके 4 प्लेऑफ की टीम्स आगे बढ़ेंगे। लेकिन रन बनाने होंगे तो वहां पे वार्नर साहब ने बोला थोड़ा लक फैक्टर चाहिए। सर, हम लोग वार्नर की बात करे जा रहे हैं कि बल्ला नहीं चल रहा है, वार्नर भी नहीं चल रहा, गुरबाज भी नहीं चल रहा, लेकिन एक वो जेक फ्रेजर जो लड़का था, उनके ना चलने का वो कहीं ना खामियाना, वो he was pulling it in, he is also gone now। जी हाँ बिल्कुल, वो इनके सबसे बढ़िया खिलाड़ी थे, वो सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो कर रहे थे, इन फॉर्म थे। डेविड वार्नर की फॉर्म नहीं लगी हुई है, 58 रन बनाए 5 मैचों में, जो इनके कद काट को वो सूट नहीं करता। हम जानते हैं डेविड वार्नर द चैंपियन, जिन्होंने बड़े बड़े मैच अपने दम पे जिताए हैं, और इस बार इनकी वो फॉर्म यहाँ पे लगी नहीं हुई है। बड़ा खिलाड़ी वही जो पिछला भूल के उस दिन अगले दिन आके अपने आप को वो साबित करे कि यार मुझे पता है रन कैसे बनाने हैं। बट डेविड वार्नर की तरह खेलना है अंजुम, ये नहीं है कि टुक टुक करके बल्लेबाजी करनी है। उनका जो अंदाज है ना खेलने का, वो ताबड़तोड़ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपना अंदाज चेंज किया है, जिसके कारण वो उनसे अब वो शॉट्स लग नहीं रहे हैं। काफी टाइम से है सर, पर ये जो अंदाज बदला पर ये वो अंदाज चेंज करना पड़ेगा। इफ ही वांट्स टू मेक ए कमबैक, प्रॉपर कमबैक लाइक डेविड वार्नर, देन ही नीड टू बी द फ्रेजर ऑफ दिस टीम। फ्रेजर चले गए हैं, बट ही नीड टू टेक दैट कि भाई मैंने करना है, और जिस दिन ये करेंगे फिर बाकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यार गुरबाज तो देखिए, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल उसकी फॉर्म आएगी, वो दिखते हैं। सर 82 था, उसके बाद दिखे नहीं है, दिखेंगे
टेंशन ना लीजिए, क्योंकि उनकी गेम नहीं चेंज हुई है। वो टुकु टुकु नहीं कर रहे हैं, वो लगाने को ही देख रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ इस जी। फॉर्मेट में ऐसे Good to see you, खिलाड़ी sir. जो Good है to see you. ना हाँ. वो सूट करते हैं। गुड टू सी यू यार, Good to see you. बट इट बी गुड टू सी डेविड वार्नर स्कोरिंग रन्स टुडे। नो डाउट अबाउट भाई, बिकॉज डेविड वार्नर अगर चलते हैं तो वही ग्राउंड का हर कोना कोना वो छाप मार लेते हैं। वो कहते हैं ना 360 डिग्री प्लेयर, इस किस्म के खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट में अगर आप बल्लेबाज देखेंगे, ज्यादातर जो सफल बल्लेबाज हैं दे कैन हिट ऑल ओवर द पार्क। और उसके बारे में और विस्तार में हिटिंग जोन पर बताएंगे सबा करीम। मैं खड़ा हूं एक बार फिर से हिटिंग जोन में, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग एक्सप्लेन किया जाए। आजकल के मॉडर्न T20 बैटर्स ना, अब वो कहते हैं कि आप वो सबके सब 360 डिग्री बैटर हैं। पर 360 बैटर का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि आप सामने भी शॉट्स खेल रहे हैं, आप इस तरफ भी शॉट खेल रहे हैं, आप इस तरफ भी शॉट खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पीछे भी खेल रहे हैं। अब जैसे सैम बिलिंग्स को देख लें आप, इस टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार पारियां खेली हैं, उसमें हर एक प्रकार के उन्होंने शॉट्स लगाए हैं। अब अंदर जाके इस तरह से खेल दिया, फिर ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, फिर यहाँ से ऐसे खेल दिया, और उस तरह से माइकल पेपर ने भी कई सारे शॉट्स खेले, ये पोजीशन में आकर उन्होंने ये कर दिया। अब ज़रूरी ये है जानना कि इस तरह के शॉट्स आप खेलते कैसे हैं। अब देखिए, हमारे ज़माने में क्या होता था, हम कन्वेंशनल स्वीप खेलते थे या फिर पैडल स्वीप खेल देते थे। अब सबसे जो बड़ा परिवर्तन आया है T20 बैटिंग में, उसकी शुरुआत कैसे हुई है? उसकी शुरुआत हुई है कन्वेंशनल स्वीप के साथ साथ ये रिवर्स स्वीप से। आजकल हर एक बैटर जो है उसको मालूम है कि रिवर्स स्वीप कैसे करना है। रिवर्स स्वीप भी आप वैसे ही बॉल पे कर सकते हैं जिस तरह से कन्वेंशनल स्वीप खेलते हैं। थोड़ी बहुत वो लचक में होनी चाहिए आपके रिस्ट में। और उसके साथ साथ क्या हुआ है, उसके साथ एक और जो चेंज आया है वो है स्कूप शॉट। अब स्कूप शॉट आप ऐसे भी खेल सकते हैं, फ्रंट फुट पे आके लेंथ वाले डिलीवरी को यहाँ से वहाँ खेल दिया। पर मुझे लगता है कि सबसे कठिन शॉट है स्कूप शॉट खेलना, जब बैटर इस तरह से आता है पोजीशन में, विकेट अपना गार्ड कर लेता है और उसके बाद इधर भी खेल लेता है या फिर इधर भी खेल लेता है, जिस तरह से माइकल पेपर ने खेला। तो ये जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं ना, इसीलिए मॉडर्न T20 बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रही है। शुरुआत हुई थी ये 360 डिग्री से, रिवर्स स्वीप से, पर अब ये ज़माना आ गया है कि बॉल की गति को, पेस बॉलर को या फिर स्पिनर को आप इस प्रकार से भी खेल सकते हैं और यूटिलाइज करते हैं आप पेस का, जिसका फ़ायदा होता है। और इस तरह के शॉट्स खेलने पे फील्ड पोजीशनिंग लगाना कप्तान के लिए, बॉलर के लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि T20 बैटिंग में और ज़्यादा जो है चेंजेस हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। एक सीक्रेट आपको बताऊं, सबा भाई स्ट्रेचिंग करके गए थे वहां पे कि 360 डिग्री में पीठ पे अगर चुक पड़ गई फिर क्या करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके गए। फिलहाल सबा भाई की बात हो गई है, चलते हैं टू विवेक राजदान फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट। ये वही मैदान है जहां 2018 में शाहीन शाह अफरीदी को ये अंदाज़ा लगा था कि उच्च कोटि की क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। ये वही मैदान है जहां गल्फ जायंट्स ने चैंपियन बनने का मजा चखा था। जी हाँ, ये वही मैदान है जहां रेदरफोर्ड जैसा बल्लेबाज लंगड़ाते हुए गिरती हुई टीम को संभालता हुआ नजर आया। और ये वही मैदान है जहां 2 दिन पहले आखिरी गेंद में भावनाएं उमड़ती हुई नजर आई। आज अगर इस पिच पे हम नजर डालें तो कुछ नहीं बदला है यहाँ। हाँ, शायद घास का रंग जो है वो हरे से थोड़ा सा और भूरा होता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी भी इस पिच में बहुत कुछ मौजूद है गेंदबाजों के लिए। एक जो थोड़ा सा मुझे ताज्जुब होता है वो ये कि ऐसी पिच के ऊपर स्पिनर्स जो है बहुत तेजी से गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं। हल्की सी फ्लाइट, हल्का सा छोड़ के करें तो यहाँ शायद गेंद थोड़ी सी घूमती हुई भी नजर आए। बल्लेबाजों के लिए यही सुझाव रहेगा, शुरू की कुछ गेंदें अपने आप को दें। एक बार इसके उछाल से अगर आप अभ्यस्त हो जाएंगे कि किस तरह का उछाल है तो यहाँ पे काफी रन बनाए जा सकते हैं। जाते हुए बस यही कहूंगा, मेरी दिली ख्वाहिश आज ये है कि आंकड़े जो है ना वो थोड़े से गलत साबित हों। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करके मैं टीम को जीतता हुआ देखना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि इस खेल में बस एक ही बात तय है कि तय कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, वहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अंजुम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाकर पूछते विवेक राजदान साहब से क्या क्या पूछना है आपने? क्या कमेंट्री पे बताऊंगी ना, अभी कमेंट्री पहला स्टेट मेरा ही है। बताना। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे भाई, ये सुपरस्टार्स हैं, जहां भी आप देखें वहां पे सुपरस्टार्स आपको मिलेंगे। एलेक्स हेल्स हो, सिकंदर रजा हो, दोनों टीम्स में तगड़े खिलाड़ी हैं हु कैन बी मैच विनर ऑन दैट गिवन डे। छोटा सा ब्रेक, शाहीन शाह अफरीदी ऑन द अदर साइड। क्रिकेट सफारी में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। डेजर्ट वाइपर्स पर एक नजर डाल लेते हैं तो कुछ बदलाव है नहीं, वहां पे गेंदबाजी तगड़ी लगती है। शाहीन शाह अफरीदी पिछले मुकाबले में गेंद से नहीं चले, बल्ले से चल गए, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई थी पिछले मुकाबले में। और फिर कैपिटल्स की बात करें तो एक बदलाव, कुकरहाइन आए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं जो कि टीम में आए हैं, पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले ही आके इम्पैक्ट
डालना पड़ेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बात करी, 2 दिन पहले इस ग्राउंड पर बल्ले के साथ कुछ कमाल दिखाया था, तो हमने क्या किया, उस मुकाबले के बाद हमने कहा जी आप कहीं नहीं जा रहे, हम आपको पकड़ लेंगे और बताओ उन आखिरी ओवर्स में क्या चल रहा था। I think Shaheen Afridi is one of the most humble guys that I know. मैं शाहीन के साथ सारी क्रिकेट अंडर 19 से खेला हूँ, सो आई हैव सीन हिम बिकमिंग शाहीन शाह अफरीदी। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरे साथ मेरे बैच का लड़का, ही इज़ अ ग्लोबल सुपरस्टार नाउ। जो एक कैप्टन में क्वालिटी होनी चाहिए विद द प्लेयर्स के, वो किस तरह उनको मैनेज करता है, आई थिंक वो मैं शाहीन शाह अफरीदी के अंदर देखता हूँ। आई थिंक मेरे लिए तो 2015-16 के एंड में मैंने 15 के एंड में मैंने शुरू किया था। मेरे लिए मेरा भाई और शाहिद अफरीदी मेरे लिए सब कुछ है, उनको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की। और 2018 में जब मैं पाकिस्तान को डेब्यू, यही ग्राउंड था जहाँ से मैं PSL के लिए लाहौर कलंदर के लिए खेल रहा था, और यहाँ से ही थोड़ा सा जर्नी का आगाज़ थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हो गया। और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट बैक टू बैक खेले। तो आई थिंक एज अ यंगस्टर के लिए ये एक स्पेशल मोमेंट होती है। They need 10 from the last 6 balls. Right, here we go. Bolt to Shaheen. तो वो यॉर्कर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो यॉर्कर में ये होता है कि आप 1 करोड़ 6 के 6 बॉल तो हो नहीं सकते, उसमें से एक बाउंड्री बैट बॉल वो खुद ही बॉलर देता है, क्योंकि मैं बॉलर हूँ, एक बॉल ऐसा हो जाता है बंदे से। लेकिन हमारा यही था कि यार सिंगल रोटेट करेंगे तो बाउंड्री खुद ही आएगी, उसमें से एज पे चौका और डबल हमने इसलिए हमने कोशिश की कि यार जितना भी हम कम स्कोर लेके आए आखिरी ओवर में, तो हमारी टीम के लिए बेहतर है। Trent Bolt, last ball, 3 needed. Has it got up for? No, it's going to be 2. Is it going to be a run out? No, Trent Bolt. What was going on? Shaheen Shah Afridi has produced a piece of magic. प्रेशर में ही खेलने का मज़ा आता है, और उसमें जब आप जीतते हैं टीम के लिए तो अलग सी फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स आई थिंक इसलिए हम क्रिकेट खेलते हैं कि प्रेशर टाइम पे हम साथ में बैट्समैन भी होता है, लेकिन फिर भी आप अगर सर्वाइव कर देते और मैच जिता देते टीम के लिए, तो ये बड़ी बात होती है। हाँ जी, शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, तो लेजेंड इनकमिंग द वन एंड ओनली वसीम अकरम आ चुके हैं हमारे शो पर। सर, गुड टू सी यू। आप वहाँ पे पिच पे उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी? पूछ रहा था भाई रात को खाने पे क्या खाएगा मैच के बाद। नहीं एक्चुअली उस ग्रिप का थोड़ा पूछ रहा था, आउट स्विंग ग्रिप क्या होनी चाहिए। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग इट टू हिम कि जब कल हमने देखा कि जब उसने परसों के मैच में जब पहले 2 चौके खाए फुल टॉस में, मैंने कहा जब बॉलर को पता लग जाता है यॉर्कर जब नहीं ना होना, 2 बॉल में पता लग जाता है कितना स्विंग होना है। अगर स्विंग नहीं होना तो प्लान बी पे आ जाओ, बैक ऑफ अ लेंथ अपना हिट करो। सो वो मैं उसको समझा रहा था, कह रहा मैं कि तुम्हें 3 गेंदों में पता लग जाना चाहिए एज अ बॉलर कि क्या करना है हमने। एंड आई थिंक इज अ क्विक लर्नर, दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में आता है, और इज लुकिंग गुड एज वेल इन जनरल। और बैटिंग में जो उसने जिताया मैच, तो एक वो भी कॉन्फिडेंस आता है एज अ बॉलर टू। सर, कलाइयाँ चल रही थी, मलाई की तरह चल रही थी। उसने एक ये हेलीकॉप्टर शॉट भी मारी है धोनी की तरह। हाँ। वसीम भाई, हरभजन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो भाई। लेकिन जाने से पहले आपको सर जा नहीं सकते, प्रेडिक्शन दे दो सर। दुबई छोटा सा ब्रेक, लाइव एक्शन ऑन द अदर साइड।